So, good morning, students, and welcome to the third lecture on Fourier transformations. In this lecture, we shall study about the convolution of the two functions and convolution theorem for the Fourier transformation. We shall define Fourier transformation of the Dirac delta function and unit step function. In in the application part, we shall study about the applications of Fourier transformation to solve the initial and boundary value problems. Right? So let us start with the convolution of two functions. In the last lecture, when we studied about the Laplace transformation, we have studied about the convolution of two functions. So let us recall what is the convolution of two functions. In mathematics, convolution is a mathematical operations on two functions f and g that produce a third function expressing how the shape of one is modified by the other. So this is our mathematical definition of the convolution of two function, and it is represented by this one f star g over t, and a mathematical definition is integration minus infinity to plus infinity f of u g of t minus u du. As we know that our convolution of two function is symmetric, so we can also write is at g star f over t. It means integration minus infinity plus infinity f of t minus u g of u du. So this is your mathematical definition of the convolution of two functions. Now next one is the convolution theorem for the Fourier transformation. Suppose that ft and gt are piecewise continuous functions, bounded and absolutely integrable over the interval minus infinity to plus infinity. Then the Fourier transformation of the convolution of two functions is equals to product of their Fourier transformations with some coefficients multiply, where coefficient is root of 2 pi. ठीक है, तो यदि आपके पास में दो फंक्शंस का कन्वोल्यूशन आपके पास में गिवन है और यदि आप उसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ दियर फूरियर ट्रांसफॉर्मेशंस. इट मींस एफ का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन मल्टीप्लाई बाय जी का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड विद मल्टीप्लिकेशन सम कोएफिशिएंट व्हिच इज रूट ऑफ 2 पाई. ठीक है, so you can easily prove this by using the standard definition of the Fourier transformation as well as convolution of two functions. ये वाले डेफिनेशन आप यूज कर सकते हैं और जो Fourier ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन ये है उसको यूज करके यदि हम चेंज ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं एंड सिंप्लीफाई करते हैं देन वी गेट दिस रिजल्ट. राइट, सो डेरिवेशन हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं. वी शैल स्टडी अबाउट द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दिस थ्योरम. So now if you take the inverse of this one, यदि हमारे पास में ये क्या है बेसिकली Fourier ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कन्वोल्यूशन टू फंक्शंस हैं. यदि आप इसका इनवर्स लेते हैं नाउ, इफ यू टेक द इनवर्स Fourier ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस वन, देन वी गेट कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी f ऑफ ओमेगा g ऑफ ओमेगा e की पावर आइटा ओमेगा t d ऑफ ओमेगा. यही होगा या डिफरेंट होगा? बिकॉज यदि आप यहाँ पे इनवर्स अप्लाई करते हैं सो इनवर्स की डेफिनेशन से रूट ऑफ 2 पाई तो आपका कोफिशिएंट है बाहर रहेगा. ठीक है, इनवर्स की डेफिनेशन क्या है? 1 अपॉन रूट ऑफ 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी. हमारे पास में फंक्शन क्या है? दिस वन. सो एफ ऑफ ओमेगा जी ऑफ ओमेगा ई रेज पावर आयोटा ओमेगा टी हियर डी ओमेगा. ठीक है, तो रूट पाई से रूट 2 पाई कैंसिल, सो आपके पास में ये वाले डेफिनेशन बच जाएगी आपके होने. सो इनवर्स ऑफ द एफ ओमेगा जी ओमेगा रूट 2 पाई इक्वल्स टू कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस. सो आप दोनों तरीके से आप कन्वोल्यूशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन. जब आपको एफ और जी की वैल्यू पता है तो आप कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस इस डेफिनेशन का यूज करते हुए निकाल सकते हैं. बट यदि आपको एफ और जी नहीं पता है बट उनका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशंस आपको पता है, देन यू कैन इजीली फाइंड द कन्वोल्यूशन ऑफ एफ एंड जी बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन. सो आपकी जो कन्वोल्यूशन थ्योरम है वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन योर फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन. इट मींस आपके पास में इस तरह से गिवन हो, एच ओमेगा आपका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है
which is the product of two Fourier transformation f omega and g omega. और यदि आपका इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको फाइंड आउट करना है, then we apply convolution theorem, and by the application of the convolution theorem, inverse of this equals to given by this relation. ठीक है, बेसिकली कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस के इक्वल हो जाएगा आपका, है ना. सो लेट अस सी द एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला. Find the inverse Fourier transformation of this one, 1/12 plus 7 iota omega minus omega square. So to solve this problem, we shall use convolution theorem to find the inverse Fourier transformation. So आपके पास में जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे 12 plus 7 iota omega minus omega square, इसको आप इस तरह से लीनियर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 plus iota omega 3 plus iota omega. यदि आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको यही मिलेगा. Yes or no? Yes, sir. Okay. So now, inverse Fourier transformation of this equals to f inverse of 1/4 plus iota omega multiplied by 1/3 plus iota omega. It means, suppose this is our f omega, जो first term है that is our f omega, and this is g omega. So as we can see that our Fourier transformation 1/12 plus 7 iota omega minus omega square is the product of two Fourier transformation. एक हमारे पास में क्या है 1/4 plus iota omega, दूसरा आपके पास में 1/3 plus iota omega. Now if you remember that this is the Fourier transformation of exponential function. If you remember, Fourier transformation of e raised power at u naught t minus at here equals to क्या था, कुछ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय a प्लस आयोटा ओमेगा, और यहाँ पे कोफिशिएंट आई थिंक √2/पाई या 1/2 पाई जो भी था. ठीक है, ये था कि नहीं था? फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टडी की थी इसके बारे में. ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास में जो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है 1/4 प्लस आयोटा ओमेगा की फॉर्म में है. सो बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला we know that 1/4 plus iota omega is the Fourier transformation of √2 pi e की पावर -4t u naught t. सेम यदि हम यहाँ पे √2/पाई ना होके 1/√2 पाई होगा, मल्टीप्लाई बाय 1/√2 पाई. ठीक है, तो इसका फूरियर इसके इक्वल है, तो इसका इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा? एक्चुअल फंक्शन के इक्वल हो जाएगा. सो 1/4 प्लस आयोटा ओमेगा है, इसका इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा? √2 पाई e रेज पर -4t u नॉट t. यदि हम इससे कंपेयर करें हमारे ये जो रिजल्ट है यहाँ पे, इसका इनवर्स बन जाएगा √2 पाई टाइम्स e की पावर -80 u नॉट t. ठीक है, जहां पे a क्या है? रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स फंक्शन टर्म. ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है? 4 है यहाँ पे. So you can write √2 pi e की पावर -4t u naught t, and similarly f inverse of 1/3 plus iota omega equals to √2 pi e की पावर -3t u naught t. यहाँ तक कोई डाउट किसी को? जो हमारे पास ऑलरेडी ड्राइव्ड रिजल्ट था उसका हमने यहाँ पे यूज किया है. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. Alright, now we apply the convolution theorem. This one, आपके पास में ये वाली फॉर्म गिवन है, f ऑफ ओमेगा g ऑफ ओमेगा गिवन है. ठीक है, अब आपको इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन -∞ प्लस ∞ f ऑफ ओमेगा g ऑफ ओमेगा e की पावर आयोटा ओमेगा t d ओमेगा. ये जो कोफिशिएंट है इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपकी क्या है? ये है. सो by the application of this theorem, f inverse of this equals to convolution of f and g. ये हमारे पास में f हो जाएगा, ये हमारा g हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज
और इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास में कितना है, ई की पावर माइनस 40 यू नॉट टी का फूरियर कितना है, 1/√2 पाई 1 ये जो है ना, तो यहाँ पे ये रख दीजिए आप इसमें एफ ऑफ ओमेगा, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन से आप क्या लिखेंगे इसको, सपोज दिस इज अवर एफ एंड दिस इज अवर जी, सो माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू, ये डेफिनेशन है कन्वोल्यूशन की, यस नो। Yes, sir. यदि हमारे पास में ये एफ है, ये हमारा जी फंक्शन है, कन्वोल्यूशन की यहाँ पे कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस है, सो बाय द डेफिनेशन ऑफ द कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू, तो इसको आप लिख सकते हैं ई की पावर माइनस 4 ऑफ टाउ एच टाउ, यहाँ पे डमी वेरिएबल है, टी भी रख सकते हैं और टाउ भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। So this is our f. So you can write e raised power minus 4 of tau h of tau. As you know that this step function can be written as u of at equals to h of t minus a. यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 0 आ रही है, so therefore this is h of t only. So h of tau and this one is t minus u. So it means e raised power minus 3t minus tau h of t minus tau d tau. यहां तक कोई डाउट किसी को? हमने जो कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन है वो यूज की है यहाँ पे, ठीक है। Okay, sir. अब यदि आप इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप सिंप्लीफाई करते हैं, देन वी गेट ई रेज पावर माइनस 3t आउटसाइड द इंटीग्रेशन, बिकॉज हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, टाउ के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, सो टी वाली टर्म हम इंटीग्रेशन के बाहर रख सकते हैं। तो इन दोनों एक्सपोनेंशियल जो टर्म्स हैं इनको सिंप्लीफाई करते हैं, देन वी गेट ई रेज पावर माइनस 3 टाउ मल्टीप्लाई बाई ई की पावर माइनस टाउ एच ऑफ टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रेंट हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। ऑलराइट, अब हमारे पास में यहाँ पे इंटीग्रेंट दो यूनिट स्टेप फंक्शंस का मल्टीप्लाई है। सो इफ यू रिमेंबर एच ऑफ टाउ की डेफिनेशन, एच ऑफ टी किसके इक्वल था, it is 1 for t greater than 0 and it is 0 for t less than 0, and h of t minus tau की हम बात करें यहाँ पे, या t minus a की बात कर लीजिए आप यहाँ पे ना, so this is 1 for t greater than equals to a and it is 0 for t less than a, यही डेफिनेशन हमारी। you can also write this Yes, is sir. u naught t and this is u of at। तो यदि हम यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं इन दोनों फंक्शंस का एच टी एंड एच ऑफ टी माइनस ए, तो हमारा जो प्रोडक्ट के बाद में जो फंक्शन डिफाइन होगा वो इस तरह से होगा, इट इज 0 फॉर टाउ लेस देन 0 एंड टाउ ग्रेटर देन टी एंड इट इज 1 फॉर इन दिस इंटरवल। देखिए इन दोनों से आप यहाँ पे ए की जगह आप टी की जगह तो आप टाउ पुट कर दीजिए ना, सो जस्ट रिप्लेस और कंपेयर करके देखिए आप, यहाँ पे टी की जगह टाउ पुट कर दीजिए आप, ये टाउ रख दीजिए है? और टी माइनस टाउ कर दीजिए आप इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा टाउ टाउ, ठीक है। और इसको आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, ए की जगह आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टाउ कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए इसमें टाउ की वैल्यू 0 से कम है, टाउ की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो 1 आ रही है, और ग्रेटर देन
देखिए आप यहाँ पे टाउ की वैल्यू यदि लेस देन 0 आ रही है और टाउ की वैल्यू यदि लेस देन टी है, सॉरी ग्रेटर देन टी है, इन दोनों टर्म में आपकी वैल्यू क्या मिल रही है? 0 मिल रही है। यस और नो? इफ टाउ इज लेस देन 0 एंड टाउ इज ग्रेटर देन टी, टाउ लेस देन 0 एंड टाउ ग्रेटर देन टी, देन आवर फंक्शन वैल्यू इज 0। बट यदि टाउ की वैल्यू 0 से बड़ी है और टाउ की वैल्यू टी से छोटी है यहाँ पे, तो आपको फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है? 1 मिल रही है कि नहीं मिल रही है यहाँ पे? यदि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आप अप्लाई करते हैं, जहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। टाउ लेस देन 0 के केस में भी 0 है और टाउ ग्रेटर देन टी के केस में भी 0 है। बट यदि टाउ की वैल्यू 0 से टी के बीच में है, उस केस में फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है आपकी वैल्यू। सो इट इज 1 फॉर द इंटरवल 0 to t। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं आप इसको। ये हमारी टाउ एक्सिस है। ठीक है, सो टाउ की वैल्यू 0, यहाँ पे 0 मान लीजिए और यहाँ पे t मान लीजिए। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 1 मिल रही है। इसके राइट में फंक्शन की वैल्यू 0 है, यहाँ पर भी 0 है। दिस इज अवर t पॉइंट, दिस इज 0। और 0 के लेफ्ट में भी 0 है। ठीक है, तो हमारी 0 से t के केस में हमारा फंक्शन की वैल्यू 1 है और इसके लेफ्ट और राइट में 0 वैल्यू आ रही है। ठीक है, सो आपका जो इंटरवल है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 0 से t में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? बिकॉज यदि आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसके सिंप्लीफिकेशन के बाद में आपको 1 मिल रहा है फॉर द इंटरवल 0 to t। रिमेनिंग में आपको क्या मिल रही है? वैल्यू 0 मिल रही है। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 0 से t में कन्वर्ट हो जाएगा। यस और नो? यस सर। राइट, सो हमारी जो रियल एक्सिस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ओनली इन दिस इंटरवल, ओनली 0 से t के बीच में रह जाएगी, जहां पे नॉन जीरो है वैल्यू और वो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। सो यहाँ पे हो जाएगा e रेस पर -3t इंटीग्रेशन 0 to t e की पावर माइनस टाउ डी टाउ, बिकॉज इसकी वैल्यू क्या है इस इंटरवल में? 1 है 0 से t के बीच में। यदि आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देन वी गेट e की पावर -3 1 माइनस e की पावर -t 4t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोड आउट बेटा इसमें किसी को बताएं। नो सर। ऑलराइट, और इसको दूसरे तरीके से भी आप देख सकते हैं। इसको आप क्या लिखते हैं? e की पावर -3t माइनस e की पावर -4t। यदि इनका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास में, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्या मिलेगा? 1/3 प्लस आयोटा ओमेगा। इसका मिल जाएगा आपको 1/4 प्लस आयोटा ओमेगा। कांस्टेंट हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये वाली टर्म मिलेगी। यदि इन दोनों टर्म्स को आप सिंप्लीफाई करते हैं, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ये है और इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास में ये है विद नेगेटिव साइन। इन दोनों को यदि आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको क्या बनेगा? ये वाली टर्म मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ठीक है, यस सर। राइट। सो ये आपका वेरिफिकेशन भी हो गया कि आपने जो रिजल्ट निकाला वो ठीक है। सो आपको इनवर्स ये कन्वोल्यूशन थ्योरम है कब यूज करनी है? जब आपका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन किन्हीं दो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास में प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन था, तो हमने यहाँ पे कन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो सर। ऑलराइट, now next we define the Fourier transformation of the Dirac delta function. So if you remember, this is our standard definition of the Dirac delta function. Delta of t minus a, it is infinity for t equals to a and it is 0 otherwise, or you can also write as
डेल्टा ऑफ के टी माइनस ए, याद है कुछ इसको? इट इज 0 फॉर दिस एंड 1 अपॉन के फॉर दिस, क्या थी? हम्म, कुछ याद है कि नहीं है? यही थी डेफिनेशन. नाउ इफ यू टेक लिमिट के अप्रोचेस टू जीरो हियर, delta of k t minus a equals to delta of t minus a. ठीक है. सो दिस इज अवर डेफिनेशन द डिराक डेल्टा फंक्शन. आप लोग रिवाइज कीजिए. ठीक है. So this is our Dirac delta function. It is infinity for t equals to n. It is 0 for other value of t. And we also know that this is our filtering property of the Dirac delta function. Minus infinity to plus infinity f of t delta of t minus a dt equals to f of a. ये भी हमने लेप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन के केस में स्टडी की रही है ना. So this is our filtering property of the Dirac delta function. Now we find the Fourier transformation of our Dirac delta function. तो यदि हम ये डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, सो बाय द डेफिनेशन ऑफ द Fourier transformation of Dirac delta function, f of delta of t minus a equals to 1 upon root of 2 pi integration minus infinity plus infinity delta of t minus a e की पावर माइनस iota omega t dt. ये डेफिनेशन होगी आपकी फूरियर की. यहाँ पे f की जगह आप क्या पुट कर देंगे? डेल्टा ऑफ t माइनस a. ये सुनो. Yes, sir. Right. Now if we apply this property, integration minus infinity plus infinity f of t delta of t minus a dt equals to f of a. तो यहाँ पे f of t की जगह आप आंसर क्या मिल जाएगा? f of a मिल जाएगा. और यदि हम यहाँ पे देखें f t की जगह कितना मिल रहा है आपको? e की पावर माइनस ओमेगा टी है. यदि हम इससे कंपेयर करें, एफ टी किसके इक्वल है? e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी के इक्वल है. सो बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस फिल्टरिंग प्रॉपर्टी, इस इंटीग्रल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा ए. सुनो, यहाँ पे f ऑफ a आपको आंसर मिल रहा है. तो यहाँ पे f की जगह कितना है? e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी है. तो f ऑफ a क्या बन जाएगा? e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा ए. Yes, sir. ठीक है. सो दिस इज अवर फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डिराक डेल्टा फंक्शन. लेप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या था डेल्टा ऑफ टी माइनस ए का? कुछ आइडिया? भूल गए लग रहा मुझे सब कुछ. क्या था बेटा? लेप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन क्या था आपके पास में? ये भी याद नहीं होगा. आपके पास में दो फॉर्म थी, e की पावर माइनस ए एस अपॉन एस एंड e की पावर माइनस ए एस. कौन सा किसका पूरे ट्रांसफॉर्मेशन है? सॉरी, लेप्लेस. यहाँ पे इसका लेप्लेस आपके पास में ये था और इसका लेप्लेस आपके पास में ये था. ठीक है. सो Fourier transformation of our Dirac delta function is 1 upon root of 2 pi e की power minus iota omega a. So remember this result. We shall use this result in application of the Fourier transformation to solve initial value and boundary value problems. ठीक है. तो अभी के लिए याद रखिए कि Dirac delta function है, उसका Fourier transformation किसके इक्वल है? 1 upon root of 2 pi e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा a.
Now next we find the Fourier transformation of the unit step function. So again, by the definition of the unit step function, our unit step function u of at, which is equals to Heaviside function t minus a, and it is 1 for t greater than equals to a, and it is 0 for t less than a. यही होता है. Yes or no? यही डेफिनेशन है हमारे स्टेप फंक्शन की. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. राइट. अब आपको इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल दीजिए, कहाँ दिक्कत है. फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u of at, by the definition this is equals to 1 upon root of 2 pi minus infinity to plus infinity u of at e raised power minus iota omega t dt. yes or no? यही होगी. Yes. Right? Now, due Yes, to sir. the presence of this unit step function, हमारी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी. इसकी वैल्यू 1 है for t greater than equals to a, so this becomes a to infinity. कोई डाउट यहां तक किसी को? No, sir. this becomes 1 dot. राइट. अब आप इजीली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, -1 अपॉन आयोटा ओमेगा e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी लिमिट्स फ्रॉम a टू इंफिनिटी. इसको यदि आप सिंप्लीफाई करते हैं देन वी गेट दिस वन, 1 अपॉन रूट ऑफ 2 पाई 1 अपॉन आयोटा ओमेगा e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा a. ठीक है. कोई डाउट यहां तक किसी को? No, sir. All right. So this is our Fourier transformation of the unit step function. तो ये रिजल्ट भी आपको पता होना चाहिए. This is our Fourier transformation of the unit step function or Heaviside function. Next, we define the applications of the Fourier transformation to solve the initial value problem and boundary value problem. So in this section, we shall discuss the Fourier transformation solution of the heat equation, wave equation, and Laplace equation. All right. So if the Fourier transformation is applied with respect to one of the variable in the differential equation, then we obtain an ordinary differential equation in terms of the other variables. We solve this differential equation. The solution of the given initial value problem and boundary value problem is known as, or it can be obtained by taking the inverse Fourier transformation. तो जैसा कि हमने लाप्लास के केस में किया था, जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, वहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, वन वेरिएबल के अंदर थी. इफ यू रिमेंबर, तो आपकी इक्वेशन किस फॉर्म में थी, इस फॉर्म में थी, y प्राइम प्लस ए वाई इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ t. तो यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल की फॉर्म में थी, t पे डिपेंड करती थी, है ना. यहाँ पे t की वैल्यू कुछ होती थी जो भी थी कंडीशंस पे. तो यहाँ पे हमारे पास में एक वेरिएबल था जहाँ पे जिसके ऊपर y डिपेंड करता है. बट ये हमारे पास में यहाँ पे हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशंस होंगी. ये 2 वेरिएबल की इक्वेशंस होंगी. इट मींस हमारे पास में कोई वेरिएबल u है विच इज द फंक्शन ऑफ x एंड t होगा यहाँ पे, है ना. तो हम इनमें से किसी भी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे. सपोज x के रेस्पेक्ट में लेंगे तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या बन जाएगा, u ऑफ ओमेगा कॉमा t बन जाएगा आपके पास में. और यदि इसका हम t के रेस्पेक्ट में लेते हैं तो आपके पास में u ऑफ x कोमा ओमेगा बन जाएगा आपके पास में. बिकॉज इफ यू रिमेंबर, एफ टी का फूरियर किसके बराबर बन जाता है हमारे पास में,
एफ ओमेगा के इक्वल हो जाता है। इट मीन्स जिस वेरिएबल का है उसके रेस्पेक्ट में लेते हैं तो अदर वेरिएबल में कन्वर्ट होता है। यदि एक्स के रेस्पेक्ट में इसका फूरियर निकालते हैं तो हमारे पास मिल जाएगा यू ऑफ ओमेगा कोमा टी, और यदि इसका टी के रेस्पेक्ट में फूरियर निकालते हैं तो यू ऑफ एक्स कोमा ओमेगा बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे जो हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन इन लाप्लास इक्वेशन है, वो हमारे पास में किसी टू वेरिएबल की फॉर्म में गिवन होगी। u इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। इनमें से किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम फूरियर निकालेंगे तो हमारे पास में एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकालेंगे बाय यूजिंग द इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस, और उस केस में जो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा उसका हम इनवर्स लेंगे तो हमको एक्चुअल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हमको लर्न करने हैं। लेट u ऑफ एक्स टी बी द गिवन फंक्शन। यहाँ पे u क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है विच डिपेंड्स ऑन x एंड t, बी द गिवन फंक्शन, एंड u ऑफ ओमेगा कोमा t u c ओमेगा t, यहाँ पे c डिनोट्स दी फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, एंड u s ओमेगा, यहाँ पे s डिनोट करता है फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन। राइट, so u omega t, uc omega t and us omega t be the Fourier transformation, Fourier cosine transformation, Fourier sine transformation of u of x comma t with respect to क्या है, with respect to x है। ठीक है, you can see this one, u of omega t, it is the Fourier transformation of u of x t by the definition 1 upon root of 2 pi इंटीग्रेशन माइनस प्लस इन्फिनिटी u ऑफ x कॉमा t e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा x dx। u ऑफ x t का फूरियर यही होगा विद रेस्पेक्ट टू x। बताएं ये डेफिनेशन, कोई डाउट यहाँ पे किसी को? आपकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है यहाँ पे 1 अपॉन रूट ऑफ 2 पाई एफ ऑफ एक्स ई रेस पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स dx, ये आपकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। यहाँ पे बट एक्स एफ एक्स की जगह क्या है, यू ऑफ एक्स कोमा टी है जस्ट। तो डाउट यहाँ पे किसी को? हेलो, नो सर। राइट, सो हमारे पास में यहाँ पे x क्या है, डमी वेरिएबल। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे x यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, और हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यदि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें कौन सी टर्म बचेगी, एक तो ओमेगा की टर्म बचेगी और एक टी वाली टर्म बचेगी। इट मीन हमारा किसका फंक्शन मिलेगा, यहाँ से हमको ओमेगा और टी का फंक्शन मिलेगा। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे x डमी वेरिएबल है, x यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी x प्रेजेंट है, और x के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपको किसका फंक्शन मिलेगा, ओमेगा का फंक्शन मिलेगा। उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, कैपिटल एफ ओमेगा से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। सो सेम केस इज हियर, यहाँ पे आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमारे पास में फ्री वेरिएबल क्या है, एक तो ओमेगा है और एक दूसरा क्या है, t है। सो हमारे पास में जो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो इंटीग्रेशन आपको मिलेगा दैट वुड बी अ फंक्शन ऑफ फ्री वेरिएबल्स ओमेगा एंड t। कोई डाउट यहां तक? नो सर। ऑलराइट, यदि मैं यहाँ पे u ऑफ एक्स कोमा टी इसको इस तरह से लिख दूं 1 अपॉन रूट ऑफ 2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी u ऑफ एक्स कोमा टी ई रेस पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी डी टी, तो बताइए किसका फंक्शन होगा यहाँ पे? जो इंटीग्रेशन के बाद में जो वैल्यू आएगी वो किसके फंक्शन आएगी? सर एक तो ओमेगा और एक्स का फंक्शन होगा। वेरी गुड बेटा। सो इसको हम कैपिटल यू से डिनोट करेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन को। सो एक्स कोमा ओमेगा हो जाएगा आपका ये। क्लियर? यस सर। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वन इज द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन of the second derivative equals to 1 upon root of 2 pi integration minus infinity plus infinity del 2u upon del of x square e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा x dx। यहां तक कोई डाउट किसी को?
सिंपली जो हमारी डेफिनेशन है, एफ की जगह हमारे पास क्या है, सेकंड डेरिवेटिव गिवन है यहाँ पे, ठीक है। Yes, sir. Now if we integrate this integrand by using by parts, by using these conditions, दो कंडीशन हमारे पास में है, u approaches to infinity and del u upon del x approaches to 0 when x approaches to plus minus infinity। यदि ये कंडीशन हम यूज करते हैं यहाँ पे, x approaches to plus minus infinity केस में u approaches to infinity and del u upon del of x approaches to 0, और यदि हम इस इंटीग्रेशन को बाय पार्ट सोल्व करते हैं तो हमारे पास में रिजल्ट मिलेगा आपके पास में माइनस ओमेगा स्क्वायर यू ऑफ ओमेगा कॉमा टी, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेकंड डेरिवेटिव। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? आप इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, इसको बाय पार्ट्स करेंगे ना सिंप्लीफाई, फर्स्ट इसको आप सेकंड मान लीजिए, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग दीज कंडीशंस, x approaches to plus minus infinity केस में u approaches to infinity and del u upon del of x approaches to 0। यहाँ पे u किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पे हीट और वेव इक्वेशन की बात करें, u किसको डिनोट कर रहा है, टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है यहाँ पे, और x सपोज हमारे पास में क्या है, टाइम को डिनोट कर रहा है, ठीक है। या टाइम नहीं मान के आप डिस्टेंस मान लीजिए, आप है ना, इसको डिस्टेंस मान लीजिए, टाइम कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक है। सो एज x approaches to plus minus infinity, u approaches to infinity and del u upon del of x approaches to 0, इन कंडीशंस के साथ में यदि इसको इंटीग्रेट करते हैं आप तो आपको मिलेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर u ऑफ ओमेगा कॉमा टी। Similarly, Fourier sine transformation of second derivative is equals to root 2 upon pi u omega times u of 0 comma t minus omega square us omega comma t। तो यदि आपको याद है तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है, क्या डेफिनेशन है? What is the definition of the Fourier sine transformation? हेलो, Fourier sine transformation fs omega root 2 upon pi 0 to infinity f of x sin of omega x dx, ये है कि नहीं है? हेलो, यस थोड़ा रेस्पॉन्ड किया करो, मुझे लगता है कि आप लोग पढ़ते नहीं है बिल्कुल ही। सो यदि हम इसका सेकंड डेरिवेटिव का फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं, सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बाद में आपको ये वाला रिजल्ट मिलेगा। सो रिमेंबर दिस रिजल्ट आल्सो, और यू कैन इजीली फाइंड द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। सो यहाँ पे यदि इसकी डेफिनेशन से आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देन यू गेट रूट 2 अपॉन पाई 0 टू इंफिनिटी del 2u upon del of x square sin of omega x dx, ठीक है। इसको यदि बाय पार्ट सोल्व करते हैं बाय यूजिंग अगेन सेम कंडीशंस हैं यहाँ पे ना, x approaches to plus minus infinity, u approaches to infinity and del u upon del of x approaches to 0, तो आपके पास में ये मिलेगा फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेकंड डेरिवेटिव, एंड सिमिलरली फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेकंड डेरिवेटिव विल बी दिस वन, ठीक है। तो आप ये ट्राई करना दोनों रिजल्ट, ठीक है, दोनों रिजल्ट आपको ट्राई करने हैं ये कि ये ही होते हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखो इसमें दो कंडीशन से इंपॉर्टेंट है। यदि आपके पास में कोई भी हीट इक्वेशंस गिवन है और आपकी कंडीशंस जो गिवन है आइदर u ऑफ 0 कॉमा t होगी या उसका डेरिवेटिव की फॉर्म में होगी, तो जब भी आपके पास में कंडीशंस डेरिवेटिव की फॉर्म में गिवन है, देन वी फाइंड द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन,
सो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। जब आपके पास में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम है, उसमें कंडीशंस u ऑफ x कॉमा टी के ऊपर कंडीशंस गिवन होगी, ठीक है। तो ये आपकी हो सकती है u ऑफ x कॉमा जीरो की फॉर्म में हो सकती है, u ऑफ जीरो कॉमा टी की फॉर्म में हो सकती है, या डेल u अपॉन डेल ऑफ x एट x कॉमा जीरो की फॉर्म में हो सकती है। ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। तो यदि आपके पास में ये वाली कंडीशन गिवन है, इनिशियली हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या आ रहा है, गिवन है हमारे पास u जीरो कोमा टी गिवन है, तो हम ये वाली डेफिनेशन यूज करेंगे। सो वी फाइंड द फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन हीट इक्वेशन या वेव इक्वेशन है। बट यदि आपके पास में कंडीशन डेरिवेटिव की फॉर्म में गिवन है, तो डेरिवेटिव कहाँ पे इन्वॉल्व है, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन केस में इन्वॉल्व है। तो जब आपको कंडीशन डेरिवेटिव की फॉर्म में गिवन है, डेल यू अपॉन डेल एक्स एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, सो वी शैल यूज दिस फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क हियर। तो आपको कंडीशंस के हिसाब से डिसाइड करना है। सो ये दो कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। इफ u of xt is given at x equals to 0, then we use Fourier sine transformation. If del u upon del x is given at x equals to 0, then we use Fourier cosine transformation. तो आपको ये कंडीशन से आपको डिसाइड करना है कि आपको फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, फूरियर कोसाइन अप्लाई करना है, या फूरियर साइन अप्लाई करना है, ठीक है। फूरियर साइन अप्लाई करेंगे बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, फूरियर कोसाइन अप्लाई करेंगे बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। सो डेरिवेटिव की फॉर्म में कंडीशन गिवन है तो फूरियर कोसाइन अप्लाई करना है। यदि सिंपली आपको u ऑफ जीरो कोमा टी गिवन है तो आपको फूरियर साइन अप्लाई करना है। और फूरियर साइन और फूरियर कोसाइन का जो डोमेन है वो हमारे पास क्या है, जीरो से इंफिनिटी है। आपकी जो डेफिनेशन है ना यहाँ पे, डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, जीरो टू इंफिनिटी है। तो आपके पास में यदि प्रॉब्लम राइट ऑफ प्लेन के अंदर गिवन है, इस प्लेन के अंदर गिवन है ओनली, जो टेम्परेचर या वेव की प्रॉब्लम जो भी है ना, तो हम यहाँ पे आइदर फूरियर साइन यूज करेंगे या फूरियर कोसाइन यूज करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन दी कंडीशंस की कौन सी कंडीशन गिवन है, ये गिवन है या ये गिवन है। बट यदि आपकी प्रॉब्लम होल डोमेन के अंदर गिवन है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, इट मींस ये वाला डोमेन भी आप कंसिडर कर रहे हैं उस केस में, तो उस केस में हम फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, बिकॉज फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का डोमेन क्या है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना कंडीशंस के अकॉर्डिंग कि आपकी कंडीशंस क्या गिवन है और आपका डोमेन क्या है, उस हिसाब से आपको फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन लेना है, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन लेना है, या फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेना है, ये आपको डिसाइड करना होगा उस केस में। क्लियर, कोई डाउट यहां तक? फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन कब लेना है, जब आपके पास में ये वाली कंडीशन गिवन हो, u ऑफ जीरो कोमा टी गिवन हो। फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है यदि आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो गिवन हो, और आपका डोमेन क्या होना चाहिए, जीरो से इंफिनिटी होना चाहिए। बट यदि आपका डोमेन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है, उस केस में आप फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। कोई डाउट यहां तक? नो सर। ऑलराइट, सो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, है ना। थैंक यू सर। आप लोग रिवाइज कीजिए, मुझे लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल रिवाइज